Today we will be discussing the concept of even function and odd function. Before discussing the trigonometric functions, we have discussed the even function and odd functions, and again we are discussing those even function and odd function, and now we are discussing in detail. Y equals to fx is some function, and if the function is an even function, if it is an even function, in the given function, if in place of x if we keep minus x, in place of x if we keep minus x, and if we are getting the same function, जो भी given function है, in place of x if you keep minus x, and if that f of minus x becomes fx, that function is nothing but an even function. And for an odd function, in the given function, if in place of x if we keep minus x, and if we are getting minus of fx, f of minus x is equals to minus of fx, that function is nothing but an odd function. But at the same time, if it is not becoming fx या if it is not becoming minus fx, अगर even भी नहीं है odd भी नहीं है तो हो सकता है ना even है ना odd है, it is very much possible. So if we discuss the example of even functions, if I take fx is equals to x square, earlier also we have discussed, we are repeating the same fact, but now we are discussing in detail. If we take fx is equals to x square, if in place of x if I keep minus x, function में in place of x if I keep minus x, it is minus of x square, which is nothing but x square, which is nothing but f of x. So हमने conclude किया that fx equals to x square is nothing but an even function. fx equals to x square अगर मैं कहता हूँ, that's a parabola opening upwards parabola with vertex 0, 0, and f of minus x is coming as fx. If I take fx is equals to cos x, again we are aware of the fact that f of minus theta या f of minus x is going to be cos of minus x is cos x only. It is again an even function. In fact trigonometric functions के पहले ही हमने even odd और periodic functions की बात करी थी. So f of minus x is clearly becoming fx, cos minus theta is cos theta. दोनों ही फंक्शंस को जब आप ऑब्जर्व करते हो ये दोनों इवन है, सिंपल सी बात है. इन द गिवन फंक्शन इफ यू कीप इन प्लेस ऑफ x माइनस एक्स, f ऑफ माइनस एक्स fx अगर बन रहा है तो इवन फंक्शन है. ये दोनों फंक्शन इवन फंक्शन है, एक्स स्क्वायर और cos x. बहुत ही एलिमेंट्री लेवल के एग्जांपल्स लिए अपन ने, और जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो और वो ये कि बोथ इवन फंक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा ये फंक्शन. y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक का से मतलब ये हुआ कि इफ द कर्व इज देयर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की सिमेट्री तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो फोर्थ है तो थर्ड में आएगा, ऐसा. इफ आई टेक द फंक्शन एज fx इज इक्वल्स टू x क्यूब ऑड डिग्री का फंक्शन है. And if I take f of minus x, in place of x अगर मैं minus x रखता हूँ तो minus of x और उसका क्यूब which is minus of fx, it is clearly becoming an odd function. तो x क्यूब जो है वो एक odd function है. कुछ ऐसा. तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप देखोगे 1 पर 1, 2 पर 8, 3 पर 27, -1 के करस्पॉन्डिंग -1, -2 के करस्पॉन्डिंग -8, -3 के करस्पॉन्डिंग -27. राइट, इट्स एन ऑड फंक्शन. इफ आई टेक fx इज इक्वल्स टू sin x, you are aware of the fact that sin x, then cosec x,
tan x and cot x. These four functions are odd functions, and cos x and sec x, those are even functions. तो sin x की बात करें, आप ये ऑब्जर्व कर पाते हैं कि जो बोथ द फंक्शंस विच आर ऑड फंक्शन एक्स क्यूब और साइन एक्स, ये दोनों जो ऑड फंक्शंस हैं, ऑड फंक्शंस आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. ये दोनों फंक्शन, ये एक्स क्यूब और कॉस एक्स जो है, ये ऑड फंक्शन है और ये ऑड फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक बोलिए या सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट. अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में उसकी इमेज होगी, फर्स्ट है तो थर्ड में और फोर्थ है तो सेकंड में. अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक. सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन या इन अपोजिट क्वाड्रेंट. इनफैक्ट इतना डिस्कशन हमने पहले भी किया था. नाउ विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन एंड हाउ टू राइट द एक्सटेंशन ऑफ the given function as an even function, odd function. Now there are 6 questions and we have to decide about the even function, odd function, या neither of the two. All 6 functions one by one we check for that. ना बड़ी आसानी से काम हो जाएगा. fx is equals to x into a raised to power x plus 1 upon a raised to power x minus 1. For this function, in place of x, if we keep minus x, it is minus of x a raised to power minus of x plus 1 upon a raised to power minus x minus 1, right? So minus of x into a raised to power minus x plus 1 upon a raised to power minus x minus of 1, f of minus x is equals to a raised to power x minus 1. एलसीएम लिया यहाँ पर 1 अपॉन a to the power x लिखा और फिर एलसीएम लिया. राइट. a raised to power minus x has been written as 1 upon a to the power x and then taken the LCM. 1 plus a raised to power x upon माइनस साइन को एडजस्ट किया. यू आर गेटिंग द सेम फंक्शन ना. ये माइनस कॉमन लीजिएगा तो इट इज माइनस कैंसिल होगा. x इंटू 1 प्लस a रेज टू पावर x अपॉन a रेज टू पावर x माइनस 1. f ऑफ माइनस x इज कमिंग एज fx. दिस फंक्शन इज क्लियरली एन इवन फंक्शन. 2 स्टेप में आ गया, कुछ खास बात है ही नहीं इसमें. जो गिवन फंक्शन है उस फंक्शन में इन प्लेस ऑफ x यू टू कीप माइनस x, द ओनली पॉइंट देयर. और डिसाइड कर लीजिए कि f ऑफ माइनस x fx आ रहा है या f ऑफ माइनस x माइनस ऑफ fx आ रहा है या कुछ और आ रहा है. अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स आ रहा है, इवन f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ रहा है ऑड, और अगर ऐसा कुछ नहीं, कुछ अलग ही रिजल्ट आ रहा है तो दोनों ही नहीं है. If I take the second one, fx is equals to x sin square x minus of x cube. f of minus x, so it is minus of x into sin square of minus of x minus of x cube. In place of x we have kept minus x. Sin of minus theta is minus sin theta. Sin of minus x minus sin x, लेकिन उसका स्क्वायर हो रहा है तो that will become positive. It is minus x sin square x minus of x cube with minus sign will become plus x cube. Right. जो गिवन फंक्शन है वो है x sin square x minus x cube. If I take minus sign common, माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो x sin square x माइनस ऑफ x cube. और वो ठीक ढंग से अगर आप ऑब्जर्व करें क्या हो रहा है, f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स. एंड इफ f of minus x is coming as minus of fx, it is clearly an odd function.
बहुत सिंपल सा कार्यक्रम है, आसानी से बात बनती है. नाउ द रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस. fx इज ln x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. In place of x you are going to keep minus x. रखा आपने in place of x minus x. x को माइनस x से रिप्लेस किया. ठीक, आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे सर दो बातें, या तो f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स हो जाता है तो इवन, और f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स होता है तो ऑड. बोले सर इसमें तो दोनों ही कुछ ऐसा लग नहीं रहा, माइनस साइन लॉग में तो बाहर ले नहीं सकते, तो f ऑफ माइनस एक्स इज नॉट कमिंग एज एफ एक्स या f ऑफ माइनस एक्स इज नॉट कमिंग एज माइनस ऑफ एफ एक्स. बोले सर ये तो दोनों ही नहीं है, ना इवन ना ऑड. जल्दबाजी में कंक्लूड मत करिएगा. एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इसको जल्दबाजी में कंक्लूड मत करिएगा. ये बात ठीक है कि f ऑफ माइनस एक्स, अभी यहाँ पे ln माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी तो कुछ हो नहीं पा रहा है डायरेक्टली, तो वी आर नॉट एबल टू से कि f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स आ रहा है या f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा है. लेकिन वी कैन नॉट डायरेक्टली कंक्लूड किया फिर तो दोनों ही नहीं है सर, ना इवन ना ऑड. थोड़ी सी कलाकारी करके अगर हम देखें इसमें, इट इज रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स. रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया और रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से डिवाइड किया. रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. ए प्लस बी ए माइनस बी विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ln of a minus b into a plus b will become a square minus b square. तो a square minus b square तो 1 plus x square minus x square 1 बनेगा. डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, a plus b a minus b a square minus b square, कोई परेशानी तो नहीं. इट इज 1 अपॉन, ठीक, log m by n is equals to log m minus log n. log 1 is clearly equals to 0. So it is coming as minus of ln x plus root over 1 plus x square, and minus of ln x plus root over 1 plus x square is minus of fx. क्या हो रहा है ये, f of minus x is coming as minus of fx, और f of minus x अगर fx आ रहा है, f of minus x minus of fx, it is an odd function. तो अपीयरेंस भाई यहाँ पर देखा जा रहा है, बोले सर कुछ भी नहीं, इनका ऑड भी नहीं है इवन भी नहीं है. थोड़ा सा सॉल्व करके देखा तो f ऑफ माइनस एक्स इज कमिंग एज माइनस ऑफ एफ एक्स, इट इज एन ऑड फंक्शन, राइट. ठीक है, एक और बात देखिएगा, इसी बात को दूसरे ढंग से कैसे, पहले समझ लीजिए. दिस इज एफ एक्स जो गिवन फंक्शन है. इन प्लेस ऑफ एक्स वी हैव केप्ट माइनस एक्स, ये एफ ऑफ माइनस एक्स, राइट. इफ आई एड दीज टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, राइट. जब ऐड करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, log m प्लस log n log m n, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई. आई एम जस्ट एडिंग एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स. log m प्लस log n इज log m n, a प्लस b और a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है. ln दिस इज a प्लस a माइनस b और a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर क्या हुआ, log is coming as 0. So fx plus f of minus x is coming as 0. बोले सर उससे क्या होगा, उससे ये हो रहा है that f of minus x is equals to minus of fx, और f of minus x is coming as minus of fx,
clearly an odd function. f of माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है ये ऑड फंक्शन, राइट. क्या किया समझ गए ना, एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों का एडिशन, वो जीरो दिया उसने, तो ऑड फंक्शन. इफ यू सब्ट्रैक्ट द टू, और सब्ट्रैक्ट करने पे अगर जीरो आ जाता है तो यू आर गोइंग टू कंक्लूड एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इवन फंक्शन. तो एकदम से डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से मत, थोड़ा सा उसको सॉल्व करके जरूर देखिएगा इवन फंक्शन ऑड फंक्शन के लिए. दोनों अप्रोच क्लियर है. इधर पे क्या किया, दिस इज एफ एक्स, दिस इज एफ ऑफ माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर को देखते हुए रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन रेशनलाइज कर दिया. ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉल्व करके देखा तो माइनस एफ एक्स आ गया. और इस सेकेंड अप्रोच में क्या किया, एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों को ऐड कर दिया. वी आर गेटिंग जीरो. एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ऑड फंक्शन. Now remaining these three questions. Fx is equals to 1 plus 2 raised to power x whole square upon 2 raised to power x. In place of x we have kept minus x. x को minus x रखा, ठीक. 1 plus 2 raised to power minus x whole square divided by 2 raised to power minus x. सिंपल सी बात है. 2 रेस्ट टू पावर माइनस एक्स 1 अपॉन 2 रेस्ट टू पावर एक्स लिख लीजिए और उसको एलसीएम ले लीजिए. सो इट विल बिकम 2 रेस्ट टू पावर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट टू पावर माइनस एक्स था ये, तो 1 बाय 2 रेस्ट टू पावर एक्स लिखा आपने और उसका स्क्वायर है तो 1 बाय 2 रेस्ट टू पावर एक्स. तो 2 रेस्ट टू पावर एक्स इंटू 2 रेस्ट टू पावर एक्स मल्टीप्लाइड विद 2 रेस्ट टू पावर माइनस एक्स. इन फैक्ट इट इज बिकमिंग 2 रेस्ट टू पावर एक्स ओनली. इतना तो आप कर सकते हैं. 2 रेस्ट टू पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन 2 रेस्ट टू पावर एक्स लिखना. It is simply becoming fx, clearly an f of minus x is coming as fx even function बिना कोई डाउट के, right. This fx x upon e to the power x minus 1 plus x by 2 plus 1. In place of x we have kept minus x. x को minus x से replace किया. Minus of x upon e raised to power minus x माइनस 1. इन प्लेस ऑफ x माइनस एक्स रखा. माइनस ऑफ x बाई 2 प्लस 1, राइट. इन प्लेस ऑफ x माइनस एक्स. अभी ये e रेज़ टू पावर x माइनस 1 है और ये e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ x आया, तो अगेन ऑब्जर्वेशन से हमने इसको लिखा e रेज़ टू पावर माइनस एक्स है 1 अपॉन e टू द पावर x एंड देन टेकन द एलसीएम. So minus x e raised to power x after taking the LCM. LCM मतलब e raised to power minus x minus 1 है, 1 upon e to the power x लिखा है और सॉल्व किया. What next? अभी क्या किया जाए. अभी अगर फिर से ऑब्जर्वेशन वाइज देखो तो fx इज दिस फंक्शन एंड दिस इज f ऑफ माइनस एक्स. ऑब्जर्वेशन से तो समझ में नहीं आता, बोले सर माइनस साइन कॉमन लें, कुछ बन नहीं रहा है. तो f ऑफ माइनस एक्स इज नॉट बिकमिंग एफ एक्स या f ऑफ माइनस एक्स इज नॉट बिकमिंग माइनस एफ एक्स. लेकिन मैंने क्या कहा, आपको डायरेक्टली कंक्लूड मत करिएगा कि ना इवन ना ऑड, इसको सॉल्व करके देखिएगा. तो एक बार आप एक काम करें कि एफ एक्स इज देयर, एफ ऑफ माइनस एक्स इज देयर, दोनों को जरा ऐड कर दें. इफ ऐड करने पे जीरो आता है, जीरो आता है, ऐड करने पे अगर जीरो आता है यू आर गोइंग टू कंक्लूड ऑड फंक्शन. और सब्ट्रैक्ट करने पे अगर जीरो आता है तो वो इवन फंक्शन, और नहीं आता है तो फिर कुछ नहीं. ऐड करने पे जीरो आ रहा है क्या? इफ यू आर एडिंग दीज टू एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो आर यू गेटिंग जीरो. भाई ये e टू द पावर x माइनस 1 है, यहाँ पर भी आपने 1 माइनस e टू द पावर x है, भैया इसको माइनस साइन कॉमन लेके एडजस्ट कर लो यार. इट विल बिकम x इंटू ई टू द पावर x upon e to the power x minus 1, so that you can solve it by taking the LCM. ये f of minus x, right. उधर भी डिनोमिनेटर में e to the power x minus 1 है, इधर भी डिनोमिनेटर में e to the power x minus 1 है. अगर दोनों फंक्शंस को आप ऐड करते हो, आर यू गेटिंग जीरो? बोले सर x by 2 की टर्म तो कैंसिल हो रही, लेकिन यू आर नॉट गोइंग टू गेट
0 0 तो नहीं आ रहा है. On adding these two, this is fx, this is f of minus x. You are not getting 0. चेक किया ना, नहीं आ रहा है 0. So let's subtract और उसके बाद में कंक्लूड करें. x upon e to raised to power x minus 1, it is x into e raised to power x upon e to the power x minus 1 minus x, it is plus x by 2, it is minus x by 2 plus 1 minus 1 plus 1 plus 1. जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल होगा, बट x by 2 और ये x by 2 ऐड होके x बन जाएगा, राइट. डिनोमिनेटर में e to the power x minus 1 है, सिंपल सब्ट्रैक्शन की बात है, लेकिन बता रहा हूं मैं आपको. e raised to power x minus 1 is there, so x कॉमन लेने पर it is 1 minus e raised to power x upon e raised to power x minus 1 plus x by 2 और plus x by 2 हो जाएगा, that will be plus x, right. It is minus x plus x which is 0, and finally f of minus x is coming as fx, and when f of minus x is coming as fx, you are going to conclude that okay, this function is an even function. ये even function होगा. आ रहा है समझ में? कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया हमने, सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखा है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो बड़ी बात नहीं है. fx माइनस ऑफ f ऑफ माइनस x, ये दोनों ना 1 और 2, and we are getting 0. Even function. And the last one, if you observe the last one, क्या बोलते हो? x square cos x plus x cube. It is in place of x, अगर आप minus x रखते हैं, देख लीजिए इसको भी last one. In place of x if you keep minus x square as it is रहेगा, cos of minus theta cos x रहेगा, जो x square cos x बना, लेकिन minus of x cube होगा. समझ रहे हो क्या? f of minus x will become here x square cos x minus of x cube. even odd क्या? कुछ भी नहीं. ना even odd. even odd के डिस्कशन में fx is equals to 100. if I say fx equals to 100, fx equals to 100 मतलब it's a constant function. और कांस्टेंट फंक्शन को आप क्या कह सकते हैं? इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, या दोनों ही नहीं? कांस्टेंट फंक्शन fx इक्वल्स टू 100, fx इक्वल्स टू 100 या y इक्वल्स टू 100, कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन को इवन या ऑड क्या कहेंगे आप? क्यों इवन? क्यों? y इज इक्वल्स टू सम k ना, fx इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट. यस, इट इज गोइंग टू बी इन इवन फंक्शन, एक इवन फंक्शन होगा. और वो इसलिए कि कांस्टेंट फंक्शन इन प्लेस ऑफ x, इवन इफ यू कीप माइनस x, fx अगर k, f ऑफ माइनस x रखने पर क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं, f ऑफ माइनस x विल रिमेन k ओनली, राइट. और y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट दैट्स अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, वो x एक्सिस के पैरेलल लाइन है. सो ठीक है ना, कहाँ दिक्कत है? इट इज क्लियरली सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, राइट. तो जो भी कांस्टेंट फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन इवन फंक्शन. एंड इफ fx इज इक्वल टू 0, अगर fx 0 है, fx 0 मतलब y 0, y 0 मतलब x एक्सिस. fx इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट? y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 मीन्स व्हाट? x एक्सिस की इक्वेशन है y इक्वल्स टू 0. उस फंक्शन को इवन फंक्शन भी कहा जा सकता है और उस फंक्शन को ऑड फंक्शन भी कहा जा सकता है. वो ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है, एज वेल एज
वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो इवन फंक्शन, इवन एज वेल एज ऑड, दिस इज द ओनली फंक्शन जो इवन और ऑड दोनों ही रहेगा, एफ एक्स इक्वल्स टू 0, राइट. नाउ थिंक अबाउट एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स अपॉन greatest integer of x by pi plus half. It is greatest integer function there, and you have to decide again about whether this function is an even or odd, या दोनों ही नहीं. Now that f x is equals to sin cube x upon greatest integer of x by pi plus half, we have to decide about even or odd. In place of x we have kept minus x. It is becoming sin cube minus x अपॉन, इन प्लेस ऑफ x माइनस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में माइनस ऑफ x बाय पाई प्लस 1/2, राइट. एज फार एज साइन क्यूब माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और इसकी ऑड पावर है तो ठीक है. इट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स एक्स बाय पाई प्लस 1/2. लेकिन अभी मेरा सवाल आपसे कि सॉरी, इट इज माइनस साइन इज देयर, राइट. माइनस साइन इज ऑल्सो हियर, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. एकदम से परेशान हो गए. साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ऑड पावर है, ठीक है. माइनस ऑफ साइन क्यूब एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ऑफ एक्स बाय पाई प्लस हाफ. क्या किया जाए? greatest integer of minus of x by pi, you cannot directly take minus sign out of the greatest integer function. माइनस साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से डायरेक्टली बाहर नहीं ले सकते आप. कब ले सकते हैं भाई अजीत? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ऑफ एक्स बाय पाई. कहाँ खो गए थे यार? minus of x by pi, minus sign you cannot take out of the greatest integer function directly outside. कब ले सकते हैं? अगर इंटीजर वैल्यू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में यार ग्रेटेस्ट इंटीजर वी हैव डिस्कस्ड, तो when one result was there, greatest integer of x plus greatest integer of minus x, that greatest integer of x plus greatest integer of minus x, that value is इक्वल्स टू 0. ये वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगी कब? जब x इंटीजर है. When x is an integer value, भाई ये 4 है तो ये -4 होगा, 4 minus 4 will become 0. और उस केस में आप कह सकते हो भैया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, आप जरूर लिख दें उसको माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, या ये कह दीजिए कि माइनस साइन आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर लिख दिया. ठीक है, इंटीजर है तब वैलिड है. लेकिन अगर इंटीजर नहीं है, इफ इट इज नॉट एन इंटीजर, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -1. greatest integer of x plus greatest integer of minus x is -1 when x is not an integer. So greatest integer of minus x is equals to minus x minus of greatest integer of x, right? Greatest integer of minus x is equals to -1 minus of greatest integer of x. ठीक. Now we are going to use that concept here. We'll be forming two cases there. दो केस बनाएंगे. कब? एक इंटीजर और एक इंटीजर नहीं है. थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. आप ये बता पाएंगे मुझे? अब क्योंकि दो केसेस देखना होंगे ना मुझे. इंटीजर होगा तो अलग हिसाब किताब, और इंटीजर नहीं है तब अलग हिसाब किताब, राइट? तो इंटीजर कब बनेगा ये? When it will become an integer. दोस्तों ध्यान से देखिएगा ये पॉइंट, इसलिए मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया आपको. अगर x इज एन मल्टीपल ऑफ n पाई, या x इज n एलिमेंट ऑफ n पाई, वेयर n इज एन इंटीजर वैल्यू. दादा अगर ये n पाई होगा
तो पाई से पाई कैंसिल होगा, n इंटीजर है तब इंटीजर बन जाएगा। इंटीजर कब बनेगा, इंटीजर तभी बनेगा जब ये पाई कैंसिल हो, इसलिए मैंने n पाई लिखा है, राइट। n पाई पे ये इंटीजर बनेगा, इंटीजर तो बनेगा, और उस केस में आई कैन टेक माइनस साइन आउट ऑफ दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिख सकता हूं, फाइन। लेकिन न्यूमरेटर को अगर आप ध्यान से देखें, चलो मैं समझाने के लिए तो लिख देता हूं, इसको दिक्कत नहीं है, माइनस ऑफ साइन क्यूब n पाई डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ n पाई बाय पाई। अभी आप यहां से माइनस साइन जरूर बाहर निकाल पाएंगे क्योंकि n इंटीजर है, साफ साफ प्लस हाफ, लेकिन उतना सब कुछ नहीं सोचना पड़ेगा क्योंकि साइन थीटा विल बिकम 0 फॉर थीटा इक्वल्स टू n पाई। सो क्लियरली साइन क्यूब n पाई, इतना मत सोचिए, n पाई है 0। सो f ऑफ माइनस एक्स विल बिकम 0 कब, जब x इज एन एलिमेंट ऑफ n पाई, n इज इंटीजर वैल्यू। दूसरा केस, जब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है x, तब क्या होगा। हाँ थोड़े से भारी हैं सवाल तो करना होंगे, क्या होगा। तो अगर x इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है तब उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। डिवाइडेड बाय ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ऑफ एक्स बाय पाई इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस ऑफ एक्स बाय पाई, राइट, यूजिंग दिस फैक्ट ओनली। लिख के बता दें, देख लो। दिस इज माइनस 1 प्लस हाफ माइनस 1 बाई 2, माइनस साइन कॉमन लीजिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से, क्या मिल रहा है आपको, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इवन फंक्शन ओवरऑल हम डिक्लेयर कर सकते हैं, क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, इट्स इवन फंक्शन व्हेन x इज नॉट एन मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और जब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई तब भी 0 है, 0 को भी इवन ऑड तो हम कह ही सकते हैं, इवन भी कह सकते हैं, ऑड भी कह सकते हैं। ओवरऑल पूरे फंक्शन को अभी इवन फंक्शन जरूर डिक्लेयर कर सकते हैं। कंप्लीट फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस देखे, दोज वी हैव डिस्कस्ड फॉर डिसाइडिंग या डिटरमाइनिंग द whether that function is even or odd. Now look for the questions where we'll be discussing to write the extension of that function. What do we mean by the extension of that function? देखिएगा, f(x) is minus x. The given function is, it is minus x when x is an element of 0 to 1, close brackets, and it is 1 for x greater than 1. That's how the function is defined. इस ढंग से फंक्शन डिफाइंड है आपको ना, 0 से 1 के इंटरवल में माइनस एक्स है और ग्रेटर देन 1 के केस में इट इज 1। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन दिया है आपको, आपको क्या लिखना है, इस फंक्शन का एक्सटेंशन लिखना है। ये बात ध्यान से सुनिएगा, एक्सटेंशन लिखना है मतलब दिस फंक्शन हैज बीन गिवन इन द इंटरवल ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आपको गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में फंक्शन दिया हुआ है आपको 0 से 1 और ग्रेटर देन 1। आपको इस फंक्शन को लिखना है x लेस देन 0 में, और कैसे लिखना है, सो दैट द फंक्शन जो आप लिखोगे, तो टोटल जो फंक्शन लिखोगे वो इवन फंक्शन बन जाए और दूसरे केस में वो ऑड फंक्शन बन जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में फंक्शन आपको गिवन है, आप लेस देन इक्वल्स टू 0 में आप लिख रहे हो उसको, सो दैट ओवरऑल फंक्शन रिमेन्स इवन फंक्शन। तो वो इवन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब आप बढ़ा के लिख रहे हो ना, greater than equals to 0 is been given to you and you are writing it for less than 0, so that the resultant function becomes even function.
So we are writing the even extension. फंक्शन तो एक्चुअल में गिवन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, मैं लिख रहा हूं उसे x लेस देन 0 के लिए ताकि वो इवन बन जाए. दैट इज इवन एक्सटेंशन. लाइकवाइज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में गिवन है, आई विल बी राइटिंग द फंक्शन, अ न्यू फंक्शन बेस्ड ऑन दिस ओनली फॉर द इंटरवल x लेस देन 0 सो दैट द टोटल फंक्शन बिकम्स ऑड फंक्शन. तो जो ऑड फंक्शन बनेगा तो मुझे ऑड एक्सटेंशन लिखना है. x लेस देन 0 में मुझे लिखना है फंक्शन को कि नया फंक्शन क्या बनेगा ताकि टोटल ऑड हो जाए. देखिएगा बहुत आसानी समझ में आएगा. आई विल बी डिस्कसिंग एनालिटिकली एज वेल एज ग्राफिकली बोथ. एनालिटिकल भी बहुत डायरेक्ट है. ग्रेट इतना तो क्लियर है आपको कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज गिवन एंड यू हैव टू राइट फॉर x लेस देन 0. देखिए so fx is minus x for 0 to 1 and 1 for x greater than 1. इवन फंक्शन क्या होता है? तो इवन का मतलब होता है f of minus x is equals to fx, राइट. हमने क्या किया ये बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा आसान कार्यक्रम. इवन एक्सटेंशन इन प्लेस ऑफ द गिवन फंक्शन वी हैव केप्ट माइनस एक्स. फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया. अब फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना, ये x दिस इज माइनस ऑफ, इन प्लेस ऑफ x यू हैव टू पुट माइनस एक्स. यहां तो कांस्टेंट है 1 का 1 ही रहेगा. इन प्लेस ऑफ x माइनस एक्स, डोमेन ऑफ दैट फंक्शन अगेन यू आर गोइंग. ठीक है. In place of x we have kept minus x to write the even extension. In place of x minus x रखा. फंक्शन में जो गिवन फंक्शन है उसमें रख दिया. ये तो 1 है, कांस्टेंट है, इसमें तो x से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. और here it is the domain of that function, इसमें भी x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया हमने. अच्छा, इवन फंक्शन फॉर इवन f of minus x क्या होगा? तो f of minus x इज क्लियरली fx. f of minus x क्या है? तो fx है. इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x एंड 1, राइट. अब ये कब, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x? ध्यान से देखिएगा. माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1. माइनस एक्स नहीं, डोमेन तो x के लिए लिखेंगे ना. तो माइनस एक्स तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करो सो दैट यू विल बी गेटिंग x. So whenever you multiply by a negative number, inequality is getting changed or reversed. So it will become, ये बन जाएगा लिख सकते हैं इनेक्विटी रिवर्स हो गई. और माइनस एक्स ग्रेटर देन 1, तो x क्या होगा? x लेस देन माइनस 1, राइट. पहले समझ लीजिए. fx इज x fx is becoming x when x is in the interval of minus 1 to 0, when it is 1 for x less than minus 1. ये जो फंक्शन आया है, आपको फंक्शन किस इंटरवल में दिया था? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में दिया था. और ये फंक्शन कौन सा आ गया? देखो जरा, इसको मैं इनफैक्ट लिखता हूं ना, ग्रेटर देन ज़्यादा बेहतर होगा. इसको ऐसे लिख देते हैं. हाँ ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, x तो लेस ही है ना. लेस देन इक्वल टू 0 नेगेटिव पार्ट में लिख रहे हो, ठीक है. माइनस 1 से 0, माइनस 1 से 0 और x लेस देन माइनस 1. इस बात को समझिएगा कि फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में दिया था और ये कौन सा? ये नया फंक्शन आपने लिख दिया.
किस इंटरवल में? 0 से लेस में, लेस देन इक्वल टू 0 में, क्योंकि 0 पे वैल्यू 0 बन रही है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। x लेस देन इक्वल टू 0 पे आपने लिख दिया नया फंक्शन। बोले सर इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो गिवन फंक्शन था, इस फंक्शन का दिस इज द इवन एक्सटेंशन, आपने उसको एक्सटेंड कर दिया। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया था, आपने लेस देन इक्वल टू 0 में लिख दिया, सो दैट टोटल फंक्शन इवन हो गया। और समझिए इस बात को, समझ में आएगा आपको। एनालिटिकल किया क्या? बिल्कुल सिंपल सी बात, इवन एक्सटेंशन क्या किया? कुछ खास बात नहीं। इन प्लेस ऑफ एक्स वी हैव केप्ट माइनस एक्स, ये इन प्लेस ऑफ एक्स माइनस एक्स, जहां जहां फंक्शन में एक्स है माइनस एक्स, और फंक्शन के डोमेन में भी माइनस एक्स। सिंस इट इज एन इवन फंक्शन तो एफ ऑफ माइनस एक्स विल बिकम एफ एक्स, रख दिया एफ एक्स। माइनस ऑफ माइनस ये एक्स हो गया। भैया माइनस एक्स से तो डोमेन में एक्स माइनस एक्स तो चलेगा नहीं, माइनस एक्स को एक्स में कन्वर्ट करो तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया इवन एक्सटेंशन। दिस इज द इवन एक्सटेंशन। और समझिए अब, बहुत आसानी समझ में आएगी बात और क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। इन द इंटरवल 0 to 1, जब जिस फंक्शन के लिए आप ग्राफ स्केच कर सकते हैं उसी में एफर्ट्स करिएगा, जहां ग्राफ नहीं स्केच कर पाए वहां मत करिएगा, फिर तो सीधी सी बात है। अदरवाइज एनालिटिकली तो अपनी जगह है ही है, तो केवल समझाने के लिए। अब इट इज माइनस एक्स इन द इंटरवल 0 to 1, 0 से 1 में ये माइनस एक्स है, ओके। 0 से 1 दैट फंक्शन इज माइनस एक्स। क्यों माइनस एक्स कैसा होगा? माइनस एक्स कैसा फंक्शन होगा? रे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग स्लोप -1, 0 से 1 में, ठीक है। ये फंक्शन होगा y इक्वल टू माइनस एक्स, लाइन खींचना थोड़े ना समझाना पड़ेगी, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस। परेशान मत होना यार प्लीज, बुरा लगेगा। माइनस एक्स है भैया, माइनस एक्स, ठीक है ना, y इक्वल टू माइनस एक्स। और फॉर x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 पे क्या फंक्शन है? तो ग्रेटर देन 1 पे इट इज 1, ओके। ग्रेटर देन 1 पर ये फंक्शन है 1। 1 कैसे बनाओगे? 1 मतलब ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ग्रेटर देन 1 पे 1, दैट इज 1। माइनस एक्स है और ये 1 है, आसानी से हमने उसको स्केच किया। ये तो गिवन फंक्शन है, आएगा समझ में आएगा। थोड़ी कोशिश और कर ले, रेस्ट मत कर। तेरे बगल वाले को कहा था तो तेने मजे लिए थे, अब तेरे को कहा तो तेरा बगल वाला मजा ले रहा है। बोले चलो ये भी फंसा। 0 से 1 में इट इज माइनस एक्स और ग्रेटर देन 1 पे ये इट इज 1। वी वांट इवन एक्सटेंशन, इवन एक्सटेंशन लिखना है। ये तो गिवन फंक्शन है। इवन फंक्शंस आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इवन फंक्शंस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। बस इस बात को हम पकड़ के और स्केच कर देंगे बिल्कुल कर्व को। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक की बात कर सकते हैं। देखो ये रहा फंक्शन 0 से 1 में माइनस एक्स, सिमेट्री तो देख सकते हैं हम, सिमेट्री सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ये 1 है इधर पे तो इधर -1। सिमेट्री का मतलब तो समझ सकते हैं ना, मिरर इमेज वाली बात। दिस इज द सिमेट्री। और ग्रेटर देन 1 पे इट इज 1, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी वाई एक्सिस में? तो लाइक दिस, ठीक है, ऐसे बनेगा। दैट्स द कर्व सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। परफेक्ट है सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस, बढ़िया। तो दिस इज नथिंग बट जो ब्लैक मार्कर से बनाया है वो एक्सटेंशन है फंक्शन का। शायद बात समझ में आ जाए आपको, एक्सटेंशन है। अब देखो ना ओवरऑल फंक्शन जो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ओवरऑल फंक्शन एक इवन फंक्शन है बिकॉज इट इज अ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। हमने बनाया उसी ढंग से। फंक्शन क्या क्या है देखो रे, ये तो 1 का 1 ही रहेगा। दिस स्ट्रेट लाइन x पासिंग थ्रू द ओरिजिन,
वही लिखा है हमने, fx इज इक्वल टू x, बोर्ड पे देखिए प्लीज, fx इज इक्वल टू x फॉर -1 to 0, ये रहा x -1 से 0 में, और इट इज 1 फॉर लेस देन -1, -1 से लेस वैल्यू के लिए इट इज 1, दैट इज द फंक्शन, दैट्स वी हैव सॉल्व्ड यूजिंग द ग्राफिकल वे। ग्राफिकल में क्या किया हमने, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, दैट कंसेप्ट वी हैव यूज्ड, जो फंक्शन को ड्रॉ किया और उसकी सिमेट्री बना दी अपन ने y एक्सिस के अबाउट, और डोमेन के साथ में लिख दिया उसको, और एनालिटिकली बहुत सिंपल सा कार्यक्रम, इन प्लेस ऑफ x माइनस एक्स, हाँ इन प्लेस ऑफ x माइनस एक्स डोमेन में भी रखा और सॉल्व कर लिया, ठीक। नाउ थिंक अबाउट द ऑड एक्सटेंशन, एनालिटिकली एज वेल एज ग्राफिकली, लेकिन ग्राफिकली केवल तभी अटेम्प्ट कीजिए जब आप कंफर्टेबल हो ग्राफ स्केच करने में, अदरवाइज नहीं, तब अदरवाइज जस्ट गो फॉर द एनालिटिकल। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ऑड एक्सटेंशन। ये गिवन फंक्शन है आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और आपको यू हैव टू राइट द ऑड एक्सटेंशन ऑफ दैट फंक्शन, उस फंक्शन का ऑड एक्सटेंशन लिखना है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए प्रोवाइडेड है आपको फंक्शन, आपको लेस देन 0 के लिए लिखना है या लेस देन इक्वल टू 0 के लिए लिखना है, सो दैट टोटल फंक्शन बिकम्स ऑड फंक्शन। देखिए ऑड एक्सटेंशन, इन प्लेस ऑफ x, ऑड का मतलब हम जानते हैं इन प्लेस ऑफ x फंक्शन में -x रखते हैं तो f ऑफ -x इज माइनस ऑफ fx, और इवन में f ऑफ -x इज fx। हमने क्या किया, f ऑफ -x इन प्लेस ऑफ x वी हैव केप्ट -x, फंक्शन में भी रखा और फंक्शन के डोमेन में भी रखा, एज वी हैव डन इन द प्रीवियस पार्ट। इट्स अ कांस्टेंट 1, तो 1 पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, इन प्लेस ऑफ x वी हैव केप्ट -x, रख दिया। अब f ऑफ -x, इवन फंक्शन में तो fx, लेकिन ऑड फंक्शन में f ऑफ -x इज माइनस ऑफ fx, so it is minus of fx, it is x 1, डोमेन भी चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग, डोमेन जो चेंज हुआ -1 से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी रिवर्स हुई, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था सेम वही कार्यक्रम। ठीक, बोले हो गया, हुआ नहीं, अब की बार ये है कि माइनस साइन है ना, ये प्रीवियस केस में हो गया था fx आ गया था, बट इट इज माइनस साइन, माइनस ऑफ fx, इस माइनस को एडजस्ट करो पहले, कैसे, दैट fx विल बिकम दिस माइनस साइन, फंक्शन क्या है, देखो माइनस fx अगर x है, सुनना इस बात को ध्यान से, माइनस fx अगर x है तो fx क्या होगा, माइनस x, भैया माइनस fx इज इक्वल टू x, तो fx इज माइनस x, और माइनस fx इज 1, सो fx इज माइनस ऑफ 1, भाई माइनस साइन फंक्शन के साथ में आ जाएगा। बोले सर ये भी तो चेंज होगा, नहीं भैया ये तो फंक्शन का डोमेन है, ये क्यों चेंज होगा, ठीक। So fx is coming as minus x for -1 to 0 and fx is coming as -1 for x less than -1। ये जो फंक्शन आया है, दिस इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ दैट फंक्शन, और कैसा एक्सटेंशन, दैट इज द ऑड एक्सटेंशन। फंक्शन जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ था आपको, एंड यू हैव रिटन दिस फंक्शन फॉर x लेस देन 0, आपने लेस देन इक्वल टू 0 के लिए लिख दिया, 0 पे वैल्यू सेम 0 ही बन रही, इसलिए दिक्कत नहीं है, so that total function becomes odd function। भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में दिया था, लेस देन इक्वल टू 0 में लिख दिया, तो पूरा ऑल रियल वैल्यूज के लिए बन गया फंक्शन, वो ऑड है। ग्राफिकली देखो उसको, ऑड फंक्शन, ये तो गिवन फंक्शन है, हमने स्केच करके रखा हुआ है, गिवन फंक्शन है उसको स्केच करके रखा हुआ है। वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट, भाई we are aware of the fact that odd functions are symmetric about origin, odd functions origin के about symmetric होते हैं, ये कहिए कि odd functions are symmetric in opposite coordinate,
अपोजिट मतलब 1 3 2 4, और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक मतलब 1 2 3 4, है ना? नहीं समझे? 1 2 3 4। सो अपोजिट क्वाड्रेंट, अपोजिट क्वाड्रेंट 1 3 4 2 हो गया, बना लो। That is a straight line. माइनस एक्स विल रिमेन ऑफ माइनस एक्स ओनली। और ये क्वाड्रेंट नंबर 1, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 3। चेक कर लो ये। दिस फंक्शन इज माइनस एक्स फ्रॉम -1 to 0, -1 से 0 में माइनस ऑफ एक्स, और -1 से लेस में इट इज -1। ठीक, ऑड एक्सटेंशन लिखना है तो ये एनालिटिकल वे हो गया, ऑड एक्सटेंशन लिखना है तो ग्राफिकल वे हो गया। डायरेक्टली उसको देखो और लिख दो, और बराबर भी -1 से 0 में माइनस एक्स है और लेस देन -1 में -1 है, खत्म बात। तो ग्राफिकल में क्या अपन ने, वी हैव यूज्ड द कांसेप्ट ऑफ सिमेट्री। इवन फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, और ऑड फंक्शंस ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक या अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक। और एनालिटिकल वे उससे भी इजी, इन प्लेस ऑफ x माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स को एफ एक्स रखिए इवन के लिए, और एफ ऑफ माइनस एक्स को माइनस एफ एक्स रखिए ऑड के लिए, और सॉल्व कर दिए। नाउ द फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0 to 1 and it is 2x for x greater than equals to 1. That's the function given to you. Clearly that function is given for 0 to 1 and greater than equals to 1, that means it has been given for x greater than equals to 0. ये किस इंटरवल में गिवन है आपको? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में गिवन है, एंड यू हैव टू राइट द इवन इन ऑड एक्सटेंशन। किस इंटरवल के लिए? तो फॉर लेस देन इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्रोवाइडेड है, और लेस देन इक्वल्स टू 0 आपको लिखना है, सो दैट जो रिजल्टेंट फंक्शन आता है वो इवन हो जाए और ऑड हो जाए। तो फर्स्ट वी राइट द इवन एक्सटेंशन, फर्स्ट वी लुक फॉर द एनालिटिकल वे एंड देन विल बी लुकिंग फॉर द graphical way. So even extension, fx is given, in place of x we have kept minus x, फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया। जब फंक्शन को x से माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो फंक्शन में भी रखा और फंक्शन के डोमेन में भी रखा। minus of x, modulus of minus of x, it is twice of minus of x, ठीक है। Simply f of minus x is nothing but fx, it is minus x एंड मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स का मॉडुलस तो मॉड एक्स ही रहेगा, इट इज माइनस एक्स मॉड एक्स माइनस 2x। किस इंटरवल के लिए? तो माइनस एक्स से, तो -1 से मल्टीप्लाई किया, सो दैट इनइक्वालिटी रिवर्सेस, और वो आ जाएगा ये लेस देन इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन -1, -1 से 0, x लेस देन इक्वल्स टू -1। दोस्तों इट इज नथिंग बट भाई f ऑफ माइनस एक्स इज सिंपली fx। ये रहा fx, कितना आसान 2 स्टेप का तो कार्यक्रम है यार। दिस इज नथिंग बट ये जो नया फंक्शन आया है किस इंटरवल के लिए आया? -0 से लेस, तो 0 से -1 में, और -1 से लेस में। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे दिया था, लेस देन इक्वल्स टू 0 पे हमने लिख दिया। इतना सा है कि -1 से 0 में इट इज माइनस एक्स मॉड एक्स, और -1 से लेस और इक्वल्स वैल्यू के लिए इट इज द फंक्शन इज -2x, बस। दैट इज द इवन एक्सटेंशन, 2 स्टेप।
If I had to write the odd extension, ऑड एक्सटेंशन के केस में इन अगेन ये स्टेप तो सेम ही रहेगी. इन प्लेस ऑफ एक्स वी हैव केप्ट माइनस एक्स. In place of x minus x. Odd function f of minus x is minus of fx. डोमेन को भी एडजस्ट कर लिया, बट इट इज माइनस एफ एक्स हियर. ये माइनस एफ एक्स है, मुझे तो एफ एक्स लिखना होगा. ठीक है, एफ एक्स एक्स मॉड एक्स फॉर -1 to 0 and 2x, and this is nothing but the odd extension of that function, and this is the even extension of that. इतना ही है बस. That fx is x modulus of x in the interval 0 to 1, and it is 2x for x greater than equals to 1. We have to write the even extension, odd extension again. Now we are solving it graphically. जो गिवन फंक्शन है 0 से 1, 0 से 1 में फंक्शन इज x मॉडुलस ऑफ x. 0 से 1 का एक सीधी सी बात है कि बोले सर ये x मॉडुलस ऑफ x को कैसे प्लॉट करना, कोई बड़ी बात नहीं है. 0 से 1 मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, और मॉड x विल बिकम x फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x. सो इनफैक्ट दैट फंक्शन इज नथिंग बट x स्क्वायर ओनली. भाई 0 से 1 पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए मॉड x क्या होगा, तो x होगा. तो मॉड x इज x, तो x इंटू एक्स इज x स्क्वायर. तो 0 से 1 में इट इज x स्क्वायर, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पे इट इज 2x. जीरो से 1 इट इज x स्क्वायर, दिस कर्व इज x स्क्वायर, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 1 पर वैल्यू 2 बन जाएगी. ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पे दैट इज अ स्ट्रेट लाइन 2x. That is 2x. It is x square in fact. X mod x. If you want to write the even extension of that function, बड़ा आसानी से होगा कार्यक्रम. अगर even extension आपको लिखना है, even extension से सीधा सा मतलब हुआ कि function is symmetric about the y axis. तो मैंने बताया 1 2 3 4, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कर्व है उसकी जो इमेज आएगी वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी. y axis के अबाउट सिमेट्री, even extension. ये सिमेट्रिक राइट. ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस राइट. अब जरा फंक्शन को आपको लिखना होगा, इवन फंक्शन को लिखना है. लिखेंगे कैसे, बोर्ड पे देख लीजिए एक बार आप, हाउ टू राइट इवन एक्सटेंशन. fx इज this is x square, so it is also going to remain x square only. It is x square only. किस इंटरवल में, -1 से 0, -1 से ग्रेटर बट लेस देन इक्वल्स टू 0. और दैट फंक्शन ये क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन 2x है, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या होगी जो -1 पे 2 वैल्यू दे रही है, माइनस ऑफ 2x.
और लेस देन इक्वल्स टू -1 ये है। और दिस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज, इस एक्स स्क्वायर को लिखा जा सकता है, इस एक्स स्क्वायर को लिखा जा सकता है। बोले सर प्रीवियस उसमें तो अपने जब किया था कुछ अलग आया था, नहीं कुछ अलग नहीं आया था, इसे लिखा जा सकता है। ये एक्स स्क्वायर है -1 से 0 में, एक्स मॉड एक्स के टर्म में लिखना है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव वैल्यूज के लिए मॉड एक्स -x होता है, ऐसा लिख सकते हैं। ये समझ लो यार, अगर ये बात समझ में आ जाए अच्छा रहेगा। भाई ये एक्स स्क्वायर वाला कर्व है, अरे ये एक्स स्क्वायर है तो इट इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर सिमेट्रिक, लेकिन इस एक्स स्क्वायर को जो गिवन फंक्शन है उसी टर्म में अगर लिखना है तो ठीक है, -1 से 0, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए मॉड एक्स क्या होता है, तो -x, तो इसको -x मॉड x लिखा, ताकि मॉड x की वैल्यू -x होगी, -x प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए इसे -x मॉड x लिखा। और लेस देन इक्वल्स टू -1 पे दैट स्ट्रेट लाइन इज -2x। ये हो गया आपका E1 एक्सटेंशन। समझ लीजिए पहले, इफ यू टू राइट द ऑड एक्सटेंशन, तो ऑड एक्सटेंशन इज सिमेट्रिक, ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन या अपोजिट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व है तो उसकी जो इमेज आने वाली है सिमेट्रिक जब देंगे तो अपोजिट क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का थर्ड क्वाड्रेंट में। कैसे बनाओगे, ऐसे ब्लू मार्कर और ब्लैक मार्कर के अलावा मार्कर पेन की उपलब्धता नहीं होने के कारण ब्लू मार्कर ही बना पा रहा हूँ, ठीक है। देखिए 0 से 1, सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, like this, ये ऑड एक्सटेंशन पहले समझ लीजिए। अभी लग रहा है ना सिमेट्रिक बराबर अपोजिट क्वाड्रेंट। दिस इज एक्स स्क्वायर, ये कर्व कौन सा होगा, -1 से 0 में, ओपनिंग डाउनवर्ड इट इज -x स्क्वायर। This is a straight line 2x. The straight line still remains 2x. Right? How to write odd extension? Fx is equals to, in the interval -1 to 0, function is -x square. And it is 2x. बोले सर ये लेस और ये इक्वल्स टू कहाँ साइन कैसे लगा देते हो आप, भैया यहाँ पे ध्यान रखना, जो गिवन फंक्शन है 0 से 1, 1 इज नॉट इंक्लूसिव हियर, 1 इज नॉट इंक्लूसिव, इसीलिए 1 पे ओपन सर्कल मार्क किया, इसलिए जब इमेज लिया तो यहाँ पर भी ओपन सर्कल मार्क किया है। एंड दैट्स द रीजन दैट -1 इज बीन केप्ट विथ ओपन ब्रैकेट। ये समझ में आना चाहिए था, नहीं अपने मन में सब कभी क्लोज कभी ओपन बोले सब चलेगा, तो वो तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, इस -x² को x mod x के टर्म में लिखना है, तो -x² को अपन लिख सकते हैं -1 से 0 में, नेगेटिव वैल्यूज के लिए mod x -x होता है, तो -x² को लिखा जा सकता है x mod x, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज के लिए mod x -x होगा, -x into x will become -x। भाई प्रीवियसली जब आपने किया था तो ऐसे ही आया था ना, एक ही बात है वो, ये ग्राफिकली हमने सॉल्व किया। नाउ द क्वेश्चन इज, if fx is satisfying the relation f of x plus y equals to fx plus f of y, fx is satisfying the relation f of x plus y equals to fx plus f y, x and y belongs to all real values, you have to prove that fx is an odd function। ये it's a first question of its type जो आपके सामने आ रहा है, और ये आगे आने वाले कैलकुलस में कई बार आएगा इस टाइप के सवाल, कई बार। So fx satisfying the relation f of x plus y equals to fx plus f of y, x and y can take any real value, and you have to prove that this function is an odd function, and at the same time it is also given that f of 1 is given as 7. You have to ask that find the value of summation of f of I from I equals to 1 to n। ये second part है इसका। First we have to prove that this function is an odd function।
ऑड फंक्शन का सीधा सा मतलब है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज गोइंग टू बी माइनस एफ एक्स या एफ ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ वाई। और ये जो रिलेशन जिसको एफ एक्स सेटिस्फाई कर रहा है ये होल्ड करता है एक्स और वाई की सारी रियल वैल्यूज के लिए। देखिएगा एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। वी वॉन्ट फॉर ऑड फंक्शन, या ऑड या इवन की बात करना है तो इवन फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ एक्स और ऑड के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ एफ एक्स। हमने क्या किया यहाँ पर इस गिवन रिलेशन में, सिंस इट इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, और ये पहला सवाल है इस टाइप का तो थोड़ा सा आपको दिक्कत जरूर देगा समझने में, लेकिन ये कई बार लगेगा अलग अलग क्वेश्चंस के लिए। हमने क्या किया यहाँ पर, वी हैव केप्ट y इक्वल्स टू माइनस एक्स हियर। इस ये जो गिवन रिलेशन है इस रिलेशन में y इक्वल टू माइनस एक्स रख दिया हमने। और बोले सर ऐसे कैसे रख दिया, y इक्वल्स टू माइनस एक्स रखा, क्यों रखा और कैसे रख दिया आपने, क्यों कैसे रख सकते हैं, रख इसलिए सकते हैं कि x एंड y बोथ आर रियल वैल्यूज। सो y की वैल्यू माइनस एक्स हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले सर कुछ भी हो सकती है, हाँ कुछ भी हो सकती है। बोले सर माइनस एक्स प्लस एक्स रख सकते हैं, प्लस एक्स भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं, सब कुछ रख सकते हैं आप। सो आई हैव केप्ट y इक्वल्स टू माइनस एक्स हियर। सो y इक्वल्स टू माइनस एक्स रखने पर x माइनस एक्स इज बिकमिंग 0 हियर। इट इज f ऑफ x प्लस f ऑफ, और y की वैल्यू माइनस एक्स, f ऑफ माइनस एक्स। मेरा इंटरेस्ट एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स ऐसा प्रूव करना है, इसलिए मैंने y इक्वल टू माइनस एक्स को रखा। लेकिन आगे कुछ डिसाइड करें उससे पहले एक दिक्कत आती है कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो भी मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो? एफ ऑफ जीरो इज कमिंग एज एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, बट वील हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो। तो एफ ऑफ जीरो फाइंड आउट करने के लिए जो गिवन रिलेशन है तो एक्स और वाई की हर रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है। मैंने यहाँ पे सिंपली y को 0 रखा, आप चाहें तो x और y दोनों को 0 रख दो। मैंने y को 0 रखा। y को 0 रखने पर क्या बनता है, y को 0 रखने पर इट इज f ऑफ x प्लस 0, f ऑफ x, f ऑफ x प्लस f ऑफ 0, राइट। f ऑफ 0 इज कमिंग एज 0, तो f ऑफ 0 0 आ गया। आप चाहें तो x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0 दोनों को 0 रख दीजिए। उस केस में f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0। सो फाइनली f ऑफ 0 इज 0। सो f ऑफ 0 इज कमिंग एज 0। सो fx प्लस f ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू 0, या f ऑफ माइनस x इज क्लियरली इक्वल्स टू minus of fx, and f of minus x is equals to minus of fx, so it's an odd function. ठीक, ये एक odd function होगा। आगे की बात और कर लें इसमें, और इसमें कहा गया है कि f of 1 is given as 7, और आपसे कहा गया है कि find the summation of f of I from I equals to 1 to n। इसका मतलब f of 1 plus f of 2 plus f of 3 up to f of n, ठीक। so f of 1 is given as 7, बढ़िया। मुझे ये चाहिए समेशन f of 1 plus f of 2 plus f of 3 up to f of n। f of 2 रिक्वायर्ड है, फिर f of 3 रिक्वायर्ड है। जो रिलेशन है मेरे पास है f of 1 7 दिया हुआ है, x और y को 1 रख दिया मैंने। 1 1 इसलिए रखा ताकि मुझे f of 2 मिल जाए। सीधी सी बात, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं। f of 1 7 है तो 7 प्लस 7 14, बड़ा आसान कार्यक्रम है। अब f of 2 आ गया, f of 3 चाहिए, आएगा कहाँ जाएगा।
एफ ऑफ 3 आ गया 21, जो चाहिए सब आ रहा है। एफ ऑफ 1 7, एफ ऑफ 2 14, एफ ऑफ 3 21, तो एफ ऑफ 4 क्या होगा? 7 के मल्टीपल में आ रहा है, 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, तो एफ ऑफ 4 क्या होगा? तो 7 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो एफ ऑफ एन क्या होगा? 7n, 7 इंटू एन। तो एफ एक्स क्या होगा? सुन लेना ध्यान से, एफ ऑफ एन अगर 7n है तो एफ एक्स क्या है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? अगर एफ ऑफ 1 7 दिया है, एफ एक्स 7n आया है, तो एफ एक्स क्या होगा? एफ ऑफ एन अगर 7n है तो एफ एक्स क्या है? तो 7x से कहाँ परेशानी है? एफ ऑफ 1 7, एफ ऑफ 2 14, एफ ऑफ 3 21, एफ ऑफ 4 28, 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, 7 इंटू 4, 7 इंटू n, 7 इंटू x, एफ एक्स इज 7x, तो 7x इज क्लियरली एन ऑड फंक्शन, उसमें क्या दिक्कत है? इन प्लेस ऑफ x इफ यू कीप माइनस x यू आर गोइंग टू गेट माइनस 7x, ऑड फंक्शन है। आती बात समझ में? ऑड फंक्शन हमने प्रूव कर दिया था, ये दूसरा पार्ट भी हो गया। समेशन रिक्वायर्ड था, ठीक है भाई। सेवन कॉमन लेने पर वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू n, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n प्लस 1/2, दैट्स द रिजल्ट। सभी कुछ बातें हो गई। ऑड फंक्शन ऐसे भी प्रूव हो गया, एफ एक्स निकाल के भी प्रूव हो गया, और समेशन भी आ गया। ठीक।